ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਪ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੌਬੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਿਊਨ, ਰੈ, ਤਸੀਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਪਾਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਭਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ 7-8 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀ ਦੀ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਦੀ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਭਈ ਜੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ, ਕੋਈ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਨ ਈਸਵੀ 1900 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਈ 99 ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ
घट ते निर्मलिਆਂ ਦੀ विचारधारा ज़्यादा, क्योंकि वो भाई मनी सिंह दी वंश विचों सन। इस करके उन्हां दा एक पासड़ झुकाव है कि एक पासे नूं सही सिद्ध करना, दूजे नूं इग्नोर कर देना जां गलत सिद्ध करना। वो एक अलग सबजैक्ट है, कभी फिर असी विचारांगे। अज जिहड़ा एक गल होर खूबी है, ये इक्को एक ग्रंथ है जिहड़ा वार्तक विच लिखिया होया है, और वो भी गुरमुखी लिपि ते पंजाबी विच लिखिया होया। ये सब तो उरे दा ग्रंथ है, मान लो साडे नेड़े दा ग्रंथ है। 1900 ईस्वी विच ये लिखिया। इसने बहुत चतुराई वरती है। चतुराई वरती है कि पहले ग्रंथां विच लिखियां लिखतां नूं असी आसानी नाल गुरमत दी कसवट्टी ते रद्द कर सकते हाँ, पर ज्ञानी ज्ञान सिंह दे ग्रंथ नूं रद्द करन लई सानू बहुत मेहनत उसने इदां दा बना दिता कि सिख इस नूं मन लैण, इदां दा गोल मटोल करके कर दिता। जद कि उसनूं फड़ना साडे लई बहुत जरूरी है। बेसिक साडा जिहड़ा नुकता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने देवी नूं प्रगट करन लई कोई हमन कीता। जिहड़ा भी लिखारी उस हमन की गल करदा, देवी प्रगट करन की गल करदा, वो घुमा फिरा के कहानी जिहड़ी मर्जी सुना दे, पर असल विच वो गुरु नानक दे मार्ग नूं खत्म करना चाहुंदा। और जे ज्ञानी ज्ञान सिंह नूं कोई पुछ ले भी जो तू इत्थे लिखिया तू किहड़े ग्रंथ तो लिया, क्योंकि मैं पुराने ग्रंथ सारे तुहानूं तरतीबवार दसांगा, उन्हां किसी विच भी इंज नहीं लिखिया होया जिवें ज्ञानी ज्ञान सिंह ने। ज्ञानी ज्ञान सिंह तवारीख गुरु खालसा विच लिखदे हन, जिहड़ा 1900 ईस्वी विच छपिया है कि गुरु गोबिंद सिंह ने देवी प्रगट की। इस ग्रंथ के पन्ना नंबर 127 उत्ते अध्याय नंबर 55-56 ते लिखिया है कि देवी प्रगट करन लई 11 महीने का समा लगा। पर आ जिहड़ा नुकता अगला नोट करना, देवी प्रगट नहीं होई। 11 महीने का जिथों तक समय की गल है, होर ग्रंथां विच गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच भी लिखिया, होर ग्रंथां विच भी लिखिया। उत्थे तां ये कह सकदा कि मैं गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विचों देख के ये लिख रहा, पर जिहड़ा अगला इसनूं मन्नण योग बनाउण लई की कीता, ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदे ने कि गुरु गोबिंद सिंह जी दा देवी विच विश्वास नहीं सी, क्योंकि पंडित लोग कह रहे सी कि देवी प्रगट हुंदी है। उन्हां नूं झूठे करन लई उन्हां ने देवी प्रगट करन दा मतलब 11 महीने अपनी जिंदगी दे गुरु गोबिंद सिंह जी ने व्यर्थ गवा दिते, सिर्फ पंडितां नूं झूठे सिद्ध करन लई। कि इहदे विच गल विच कोई लॉजिक बनदा है? कोई जिहड़ी गल असीं नहीं मनदे तुहानूं किसी नूं सिद्ध करन दी की लोड़ है? कोई जिहड़ा गुरु नानक पातशाह ने किते सिद्ध करन दी कोशिश नहीं कीती। वो अपनियां प्रचार फेरियां दौरान जिथे भी गए उन्होंने सच धर्म का जो होका दिता, जिसने मन्निया उसका भली वाह, नहीं मन्निया तो गुरु साहब ने किसी ने अड़ी नहीं की। पर किसी अपनी गल नूं सिद्ध करन लई उन्होंने एवें टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं की, जाई नहीं गवाई पे एवें अगले ना खड़े पै गए भी तैनूं मना के छड्डांगा। किसी नूं झूठा सिद्ध करन लई 11 महीने वेस्ट कर देने, लखां करोड़ां रुपए दा तुसीं समग्री नष्ट कर देनी। ये गुरु साहब नूं मूर्ख ही समझ बैठे ने। कहंदे जी भी 11 महीने हमन हुंदा रहा, और जदों 11 महीने बाद देवी प्रगट नहीं हुई तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा पंडितां नूं देवी प्रगट क्यों नहीं हुई? तो पंडित लोग कहन लगे जी किसी दी नेक पुरुष की कुरबानी की लोड़ है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा भी तुहाडे तो पवित्र ते नेक पुरुष कौन हो सकता है पंडितां नूं? पंडित डर गए और बाहर अंदर जाण दे बहाने उत्थों खिस के आए। उदों बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारी समग्री नूं इक्को वारी हमन कुंड विच पा दिता, तां बहुत वड्डा भांबड़ मचिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी किरपान ते हथ रख मुठ ते हथ रख के कहा ये चंडी है, ये शक्ति यही है। मतलब उसनूं साडे जिहड़े शिकारी दे तिੱਤਰ प्रचारक है ना, इस तरह गोल मटोल करके ये साडे गाल पा रहे हैं
कि ये दस रहे हैं भी गुरु गोबिंद सिंह ने देवी प्रगट करने लिए 11 महीने ते लाखां रुपइयां दी समग्री नष्ट कर दी। ये बहुत ही वड्डी बेईमानी है, शरारत है, शैतानी है कि साडे गल देवी प्रगट करनी पा दी, पर प्रगट नहीं हुई। इस तो पहला ग्रंथ है, ये ग्रंथ 1900 ईस्वी में लिखिया सी। उस तो पहला ग्रंथ है गुरप्रताप सूरज ग्रंथ, जो ज्ञानी जो कवि संतोख सिंह का लिखिया होया। कवि संतोख सिंह जिहड़ा वो तो इतना इसनूं विशाल बना के लिखदा है कि जिसका कोई हद बनना नहीं है। इस दे उत्ते वो 8 अध्याय 9 अध्याय ला दिंदा। अध्याय नंबर 4 तो लैके 11 नंबर अध्याय तक, 4 तो लैके 11 नंबर अध्याय तक वो 7 ਜਿਹੜੇ ਆ अध्याय इस ते खर्च कर दिंदा। जे किसी ने इसनूं रैफर करना होवे तो ये डॉक्टर अजीत सिंह औलख वालों जो अर्थां समेत लिखिया गया गुरप्रताप सूरज ग्रंथ, ये टोटल 11 भागां विच हन। इस दे 9वें भाग दे पन्ना नंबर 705 तो लैके 755 तक ये टोटल 7 अध्याय देवी प्रगट करन उत्ते खर्च करदा है कवि संतोख सिंह। और इस दे अनुसार देवी प्रगट हुंदी है। देवी गुरु गोबिंद सिंह नूं दर्शन दिंदी है। असीं पहलां ये सारे लिखारियां नूं असीं समझ लईए, उदों बाद कवि संतोख सिंह देवी नूं किवें प्रगट करदा, वो किहो जी है, गुरु गोबिंद सिंह जी की करदे ने, असीं आखिर दे विच उस दी विचार करांगे। सो पहला ग्रंथ जिहड़ा असीं लास्ट ग्रंथ नूं पहलां विचारिया 1900 ईस्वी वाले नूं, उहदे विच देवी प्रगट नहीं हुंदी। हुण यह ज्ञानी ज्ञान सिंह दे जिहड़े पिछला लोक ने उन्हां नूं सवाल दा उत्तर देना बनदा है कि भाई उसने यह कित्थों नोट किया कि देवी प्रगट नहीं हुई, जद कि उस तो जिहड़ा दूसरा ग्रंथ उस तो पहला लिखिया गया 1843 दे विच, उत्थे कवि संतोख सिंह कहंदा देवी प्रगट हो गई। वो जवाब ज्ञानी ज्ञान सिंह ते उसनूं जिहड़े इतिहासक स्रोत मनण वाले नूं यह जवाब देना पेगा। सो असी गुरप्रताप सूरज ग्रंथ में देख लिया, इत्थे भी लिखिया होया कि 11 महीने तक समा किहड़ा लिखिया इहदे विच, ज्ञानी ज्ञान सिंह ने समा नहीं लिखिया, पर कवि संतोख सिंह समा लिखदा है। सन 1697 तो लैके 1698 दे विच 11 महीने दे समय गुरु गोबिंद सिंह जी ने देवी प्रगट करने लई हमन किया और देवी प्रगट हुई। उस तो पहला ग्रंथ जिहड़ा है प्राचीन पंथ प्रकाश भाग पहला छंद नंबर 18 पन्ना नंबर 13-14 उपर देवी प्रगट करने का जिक्र किया गया है। जिहड़ा प्राचीन पंथ प्रकाश, इहदा लिखारी कौन है? इहदा लिखारी है सरदार रतन सिंह भंगू। इसने ग्रंथ लिखिया 1841 में। भाव देखो, दोनों ग्रंथ 2 साल के वक्फे में लिखे गए ने। गुरप्रताप सूरज ग्रंथ 1843 में और जिहड़ा प्राचीन पंथ प्रकाश 1841 में, 2 साल का वक्फा। पर इन्हां दा दोनों का फर्क कितना हो गया कि प्राचीन पंथ प्रकाश वाला कहता है कि देवी प्रगट करने नूं कितना समा लगा, उसने कोई जिक्र नहीं किया। पर कवि संतोख सिंह ने देवी प्रगट करने का समा दसदा 11 महीने लगे। अगला जिहड़ा उदों पहला ग्रंथ है वो सरूपदास भल्ला महिमा प्रकाश भाग 2 खंड दूजा। इहदा लिखत का समा है 1776। पहला असी पढ़िया सी 1900 ईस्वी, दूसरा पढ़िया 1843 ईस्वी, पिछा नूं जा रहे हैं। तीसरा पढ़िया असी 1841 ईस्वी। हुण चौथा ग्रंथ जिहड़ा 1776 ईस्वी, ये असी गुरु गोबिंद सिंह के जीवन काल के नेड़े आई जाने। ये की लिखते ने? सरूपदास भल्ला महिमा प्रकाश भाग 2 खंड दूजा, लिखती सन है 1776 ईस्वी। ये अपने ग्रंथ के पन्ना नंबर 796 ते 797 उपर चंडी नूं प्रगट करने की कथा लिखता है। इस विच ये नहीं लिखिया
कि किन्ने महीने हवन किया। असीं दो चीज़ां दा पढ़ लिया कि दोनों विच जिहड़े इन्हां दे समा नहीं लिखिया होया। अगे आउंदा है केसर सिंह छिब्बर वंशावली नामा 10 पातशाहियां का। ये ग्रंथ लिखिया गया 1769। मतलब होर असीं वो 76 सी, 76 तो 7 साल होर पहलां लिखिया गया। इस विच लिखते ने कि इस दे पन्ना नंबर 139 उपर लिखिया है कि 40 दिनां दा समा गुरु गोबिंद सिंह जी ने देवी प्रगट नूं करन नूं लगाया। पिछले ग्रंथां 'च पढ़िया 11 महीने, दो ग्रंथां 'च पढ़ चुके हैं, पर इहदे विच लिखिया कि 40 दिन दा। हुण जेकर हुण यह ग्रंथ तो उदों पहलां लिखिया वंशावली नामा, जिहड़े पहलां दोनों ग्रंथ तिनों इस विचारे उदों पहलां लिखिया। इत्थे 40 दिन, 40 दिन तो 11 महीने किवें हो गया? इहदा मतलब इन्हां नूं एक टास्क दिता गया सी कि सिੱਖੀ नूं खत्म करन लई। तुसीं हमेशा जदों असीं इन्हां चीज़ां नूं पढ़दे हां, एक गल गुरु अमरदास जी का शब्द देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन न पाया। देवी देवते है नहीं, माया है, रचे गए ने, मन्ने गए ने। ये तां असल विच उन्हां दी होंद नहीं। ये गुरमत दा विधान असल विच ये है। ये कहानियां ने, स्टोरियां ने। वो दुखों तो निजात पाने लई, सुखों की प्राप्ति लई ये देवी देवते अलग अलग मिनिस्टर बनाते हर महकमे दे, और पुजारी लोगों ने उन्होंने पूजा लाई है। सिੱਖੀ का विधान देवी देवा मूल है माया। इस गल नूं समझना। पर ये सारे दे सारे लिखारी सानू खिच धू के मुड़ के फिर देवी भगत बना रहे हैं। सो केसर सिंह छिब्बर की लिखते हैं 40 दिनों में देवी प्रगट की। उदों होर पहला ग्रंथ ये 69 सी, हुण है 1751 विच। एक कोयर सिंह ने लिखिया गुरबिलास पातशाही 10वीं। होर नेड़े ये बिल्कुल नेड़े आ रहा गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन का। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह ज्योति जोत समा गए। ये लिखिया 1751 विच। तो कहने का मतलब है 43 साल बाद विच गुरु साहब के ज्योति जोत समाउण ते। कोयर सिंह जी की लिखते हैं अपने ग्रंथ के पन्ना नंबर 104 उपर लिखिया है कि देवी नूं प्रगट करन लई 4 साल का समा लगा। एक जगह 4 महीने 40 दिन पढ़िया, एक जगह असी 11 महीने 2 जगह पढ़िया, एक जगह समा लिखिया ही कोई नहीं। और इत्थे ये लिखते हैं कि 4 साल का समा लगा। समय का पीरियड भी उन्हें दस्या है कि सन 1685 ईस्वी तो लैके 1699 ईस्वी तक 4 साल का समा। वो 97-98 दस्या, बाकियां च समा दस्या ही नहीं कदों किहड़े सन दे विच होया। इहदे विच इन्हां ने वो बहुत पहलां कर दिता 1685 तो 1699 तक। सो जेकर ये सच्ची घटना हुंदी तां भई सारे लिखारी एक जबान बोलदे, पर सारे अलग अलग गल्लां कर देवी नूं साडे गल पा रहे हैं। क्योंकि कहानी झूठी है। कहानी अपने कहते हमने बना के लिख दो, पर लिख दो भी देवी प्रगट की। बस साडा इन्ना मकसद है। सिख आपस में इसलिए लड़ते रहन भी कदों प्रगट की। ये ना लभन भी देवी प्रगट की या नहीं की, इस ते बहस ना करन। बहस इस गल ते करन किन्ना समा लगा, कदों प्रगट की, प्रगट होई या नहीं होई, इस ते बहस करी जान। भाई देवी नाल गुरु गोबिंद सिंह का की वास्ता? असल में सारा कुछ जो असीं विचित्र नाटक पढ़ते हैं ना, वो सारे का सारा सानू देवी पूजक बनाउंदा। और यह जिहड़ा गुरप्रताप सूरज ग्रंथ वो बलदी ते तेल पाउंदा। सारे ग्रंथ रल मिल के विचित्र ग्रंथ विचित्र नाटक ग्रंथ नूं जस्टिफाई कर रहे हैं, उसनूं प्रमाणित कर रहे हैं, और गुरु ग्रंथ साहब जी ने झूठा सिद्ध कर रहे हैं। सो असीं देख लिया जिहड़ा ग्रंथ 1751 ईस्वी विच कोयर सिंह ने लिखिया। और एक गल होर है, यह जिहड़ा कोयर सिंह ने लिखिया ना, ਇਹਦਾ आधार भाई मनी सिंह। जो तुसी सारा कुछ पढ़ोगे ना,
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 94 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 104 ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਨ 1685 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ 1751 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, 40 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਈਵੈਂਟ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਔਰ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਲਿਆ ਬਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਲਿਖ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਬੈਠੇ। ਲਓ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਉਸਦੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਧਿਆਇ 11ਵੇਂ 'ਚ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 748, ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 9, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ। डेढ़ पैर दिन के रहे, नौवीं आयतवार चेस मास पख शुक्ल में विदती जगत आधार। डेढ़ पैर दिन रहिंदा सी, नौवीं तिथि सी ते ऐतवार दा दिन सी, चेत महीने दा शुक्ल दा पख सी, जद जगत दा आसरा रूप प्रगट होई, देवी प्रगट होई। अच्छा, बहुत ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ
ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਹਾੜ ਡਗਮਗਾ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਡਰ ਛਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਨਾਦ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ। ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਤ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਜਗ ਰਾਣੀ ਸਭ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਜਨ ਵਰਦਾਨੀ ਭੂਰ ਪ੍ਰਭਾ, ਕਹਾ ਸੂਰਜ ਇੰਦਰ ਹੈ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਪਿਖ ਦ੍ਰਿਗ ਮੁੰਦੈ ਦੇਵ ਸਭਾ। ਕਿਆ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਕੀ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੇਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਬਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਥੂਲ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਓ, ਜੁਗ ਚਰਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਨਖਨ ਕਰਾਲਾ, ਜੰਗਨ ਤਾਲਾ, ਧਰੂ ਜਥਾ, ਕਟ ਮੈਂ ਅਲਵਾਲਾ, ਹੱਡੀ ਨੀ ਮਾਲਾ, ਪਿਖ ਪੈ ਹਾਲਾ, ਉਦਰ ਤਥਾ, ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਵਾਲਾ, लट के जाला, दीर्घ काला रंग सजा, तुर के जन डाला, सुंड के ब्याला, कह बड ब्याला अष्ट भुजा। लो जी, दोवें चरण बहुत वड्डे हन, जुग चरण विसाला, विकराल वड्डे वड्डे नौ हन। मतलब वो देवी दे पैर बड़े वड्डे वड्डे हन। मतलब पैर दो ही है, अगे हत्थां दा देखो किन्ने आ। और ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੌ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਛ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਘਾਂ ਹਨ। ਲੱਕ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕਾ ਚਿੱਤਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦਿਸਦਾ, ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਲ ਲਮਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸਜਦਾ ਹੈ। 8 ਬਾਹਾਂ ਮਾਨੋ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਡਾਲ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ 8 ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ 8 ਬਾਹਾਂ ਹਨ? ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ 8 ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 8 ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡਾਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੋਲੇ ਆ। ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨੋ ਸੱਪ ਹਨ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਗਰ ਮੈਂ ਟਰ ਮਾਲਾ ਮੁੰਡਨ ਜਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਰਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਹਨ। ਦਾੜਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾੜਾਂ ਤਾਈਓ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਾ, ਦੰਦ ਅੱਗੋਂ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਅਡਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਮਾਲ। ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਲ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਤਨ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਵਸਤਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਨੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ।
मतलब एक औरत देवी जिहड़ी आ वो नंगी है। इस तो वड्डी गल होर की सुनना चाहुंदे हो। एक औरत देवी नंगी ने प्रगट हो के एक मनुख नूं दर्शन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं दर्शन दिते। और एक पासे असीं गुरु गोबिंद सिंह नूं रब कहने आ, वो जिहड़ा रब उस नूं किसी शक्ति होर दी की लोड़ आ। वो यही लिखारी रब कहणगे, वो अकाल पुरख आप सन। और यही फिर शक्ति बई वो तो एक ने वाद शक्ति इको ही है। देयर इज ओनली वन लॉ, एक कानून है, एक हुक्म है। तो फिर जे वो आप ही हुक्म सन तो फिर देवी होर एक हुक्म कित्थों आ गया, एक होर कित्थों शक्ति आ गई। अगे देखते हैं, गन जोगन संगा तन जिन नंगा। जोगनियां होर बहुत सारियां नाल ओहदे आईयां, पूरियां कल्ली नहीं आई देवी, बड़ी भीड़ सी। गन जोगन संगा तन जिन नंगा महाकुरंगा नाचत है। नचदियां सी वो सारियां नंगियां सन। वो भूत सुप्रेता केतक केता गह कर लेता माचत है। मुख हड़ हड़ हासें। वो सारियां जोगनियां जिद्दां मतलब बहुत ही ठट्ठा मखौल हसदियां सन, हड़ हड़ हासें। वाक प्रकाशें फिर चौं पासें क्रीड़ करें। वो वीर दिलासें दोए पचासें अगर प्रवासें मोद तरें। लो जी इहदे अर्थ सुन लो। बहुत जोगनियां नाल सन देवी दे, बहुत जोगनियां नाल हन। शरीर जिन्हां दे नंगे अते भैड़े रंग वाले हन, नचदियां हन। बहुत भूत प्रेत नाल हन। कईयां दे हत्थां विच झंडियां फड़ियां हन ते ओह बहुत शोर मचाउंदियां हन। मूँह विचों हड़ हड़ करके हस के बोलदियां हन ते चारे पासे फिर के क्रीड़ा करदियां हन। 52 वीर आनंद विलास करते हैं ते अगे प्रकाश दे हन ते प्रसन्नता धारण करते हैं। हुण सुनो अगे की होया। धरती ते उहदा असर की होया। धरती ते भुचाल लिआउंदियां हन, पहाड़ां दियां उच्चियां चोटियां नूं तोड़दियां हन, भारी आवाज़ नाल गजदियां हन। काली अपने भयानक गुणां नूं अगे तोरदी है। जिथे किथे भी चमकदी है उत्थे मूँह विचों अग कढ़दी है ते भै वधाउंदी आउंदी है। डैणा दी डार किलकारियां मार के चीखदी होई धमालां पाउंदी है। भयानक रूप वाली ते भैदायक देवी पहाड़ दी चोटी ते आके खड़ी हो गई। वर मंगो बहुत उच्ची आवाज़ विच बचन कह के सुनाया। भीम भेख ते भै हरा गिर के सिर पर आए। पहाड़ी की चोटी ते आके उन कहा खरी पई वरंग ब्रह वच ऊंचे कहो सुनाए। उच्ची कह के सुनाया वर मंगो किसनों? गुरु गोबिंद राय नूं। उदों सिंह हाले नहीं सी बने, गोबिंद राय नूं। अगे की होया जय जगदम्बा कह के गुरु जी खड़े हो गए। जय जगदम्बा कह गुर खरे सकल रूप को देखने करे। सारे शरीर नूं गुरु गोबिंद सिंह ने जय जगदम्बा कह के पूरे शरीर नूं देखिया। एक बार नख सिख ते हेरै। पैर दे नौं तो लैके शिखर तक एक बार पूरी देवी नूं नंगी नूं गुरु गोबिंद सिंह ने देखिया। नमो करत चक मीचे फेरा। उस दे बाद दे विच उन्हां ने अपनियां अखां बंद कर लईआं। हाथ जोड़ सन्मुख ही रहे। अपनियां अखां बंद कर लईआं। गुरु गोबिंद सिंह ने हथ जोड़ के सामने देवी दे खड़े हो गए। हुण ये दसो ए गुरु गोबिंद सिंह ने कहानी दसी हो ना, मान लो जे सच्ची गल है तो देवी तो आके चली गई। एक कहानी कवि संतोख सिंह नूं किसने दसी? एक कवि हैगे ने उडारी मारते ने और अमेजन करते ने और वो अमेजन कीतियां हुई गल्लां साडे विद्वानां ने ऐन मसाले ला ला के सानू सुना देनियां। हाथ जोड़ सन्मुख ही रहे गुरु गोबिंद सिंह जी, हाथ जोड़ के सामने खड़े रहे। हृदय मनोरथ देवी लहे
पलटियो चतुरभुजी पुन रूप, पहला 8 बाहां सी, हुण 4 बाहां हो गई। ऐ जादू करके दसना जी। कंचन वरनी पई अनूप, गुरु जी हथ जोड़ के सामने ही खड़े रहे। देवी ने गुरु जी दे मनोरथ नूं जान लिया, फिर अपना 4 बाहां वाला रूप बना लिया ते सारा शरीर सोने वर्गा अनूपम हो गया। पहला भैड़ा सी शरीर, हुण सोने वर्गा सोहना शरीर बना लिया। 8 बाहां तो 4 बाहां कर लईआं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 8 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੌਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ੇਰ ਚੜੀ ਸਿੰਘ पर आजुद धरे, शेर उत्ते चढ़ के शस्त्र धारण कर ले। देवी ने मत्थे विच सोहना चंद्रमा छवि नूं वधा रिहा सी। हे पुत्र मंगो, मैं हुण तुहानूं वर देवांगी। तुसीं मेरी सेवा करके मैनूं प्रसन्न कीता है। प्रथम प्रतिज्ञा सिमरों सोई, चहूं सो कहूं संपूर्ण होए। मृद बच मोद परे सुन फेरा, खोल विलोचन दर्शन हेरा। पहली प्रतिज्ञा याद करदी हाँ, जो चाहते हो कहांगी ते संपूर्ण होवेगा। देवी कहती पहली गल तैनूं पक्की कर दिंदे आ, जो चाहते हो वो तुहानूं मिलेगा। ठीक है। गुरु जी ने मिठे प्रसन्नता भरे शब्द सुन के अपनियां अखां खोल के दर्शन कीते। पर हुण तक अखां बंद सी, इक्को बार देखिया सी, पैर दे नौं तो लैके सिर दी चोटी तक अखां बंद कर लईआं सन। फिर अगे कहा, गुरु जी ने कहा, हे माता जी मैनू वर देवो, नवां पंथ पैदा करां। आ जिहड़ा खालसा पंथ जिहड़ा कहने ना आपां, ए गुरु नानक दे मार्ग दी कोई प्राप्ति नहीं है, ए देवी दी किरपा। जेकर इन्हां ग्रंथां नूं असीं इतिहासक स्रोत मन्नांगे, विचित्र नाटक नूं गुरु गोबिंद सिंह दी लिखत मन्नांगे, भाई फिर पता असीं की कर रहे हैं। 10 गुरु साहिबान द्वारा 239 साल दी कीती होई मेहनत नूं असीं टट्ठे खूह विच पा रहे हां। जां जिवें बहुत सारे घटाओ प्लस करदे करदे जदों सारा आंसर आ गया, सारे उत्तर आए नूं अखीर विच जीरो ना मल्टीप्लाई कर दिता, तां फिर की होया, असी की देखते हैं कि सारा कुछ जीरो हो गया। 239 साल तो बाद यह ग्रंथ लिख के सूरज प्रकाश वर्गे विचित्र नाटक ग्रंथ वर्गे साडे गल पा दिते। जिहड़ा खालसा पंथ प्रगट होया वो सारा देवी दी किरपा नाल, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह कहते हुए दिखाए ने, नवां पंथ पैदा करां, तुर्क राज दे तेज नूं खत्म करां। एक होर गल, गुरु साहब संसार नूं कोई निर्मल निराला मार्ग देण नहीं आए सन, सगों साडे गुरु साहिबान मुसलमानां नूं खत्म करन, मलेशिया नूं खत्म करन आए सन। ਉਹਦੇ खत्म करन लई देवी दी भगती कीती, उसदा हमन कीता। ਉਹ ਤੋਂ वर मंगिया कि मैं नवां पंथ पैदा करां ते फिर तुर्क राज नूं खत्म करां। हिंदू धर्म नित खत्म हो रहा है, जिस नूं बचा के फिर प्रकाशित करां। ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਮ ਕਰਤੇ ਅਸ ਅਯੁੱਧ ਪਾਵੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਐਸਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਵਾਂ, ਜੇ ਪਖਾਰ ਨਿਜ ਪੰਥ ਪਿਲਾਵੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੌਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਪਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਪੌਲ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ 1699 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
चंडी दी दुर्गा दी भगती पूजा की, हवन किया। दुर्गा ने प्रगट हो के जो कुछ गुरु गोबिंद सिंह ने मंगया वो दिता। उसनू धो के उसकी पौड़ नूं ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पिलाया गया, जिसनू धो के पिला के लोकां नूं अपने पंथ विच रलावां, जिस नाल विकराल तेज धारण करन ते बलवान वैरी नूं भी जित लैण। मेरे पंथ दी सदा सहायता करो, ये दिन प्रति दिन वधे, इहो वर देवो। यह गुरु साहब ने दुर्गा तो चंडी तो वर मंगया। तेरा चरित्र मेरे मन विच वसे, जिसदा शाम सवेरे सिमरन करा। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि देवी काली माता दुर्गा भवानी चंडी, मैं शाम सवेरे तेरा सिमरन करा, किसे अकाल पुरख नाल कोई जोड़िया नहीं। देवी जे इसनू शक्ति कहंदे हो, फिर मैनू दसो भी हिंदू धर्म तो अपने आप नूं अलग क्यों कहंदे ने? वो भी उन्हां दी शक्ति चंडी है, तुहाडी शक्ति भी चंडी है। वो गुरु गोबिंद सिंह ने मुख चों कढ़ा रहा कि दिन सवेरे शाम मैं तेरा सिमरन करा। फिर भाई मान लो भी असी हिंदू हाँ, एक पासे तुसीं सानू कही जांदे वे ग्रंथ साडे ने, दूजे पासे तुसीं स्टेज तो कही जांदे हो सिख एक वखरी कौम है। सानू क्यों मरवा रहे हो? सीधी सीधी गल करो, असी वखरी कौम हाँ, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब निर्मल निराला पंथ है, उस अनुसार असी जीवांगे। पर जे असी देवी दे भगत हाँ, फिर भाई सानू वखरी कौम ना कहो, ना इस चक्कर च पाओ, एक पासे हो जाओ। पंथ रचन वास्ते अते तुरकां दा तेज खोण वास्ते मेरे उत्ते किरपा करके ये दोवें वर देवो। खालसा पंथ रचना और तुरकां नूं मारना। इस तरह सुन के देवी हस पई। लो जी, देवी कहंदी जिहड़ी ना शक्ति है हस पई। हुण मैनूं दसो शक्ति किदां हसू? जिसदा शरीर नहीं, हसू किदां? हो शरीर ही हसदा ना, वो तो तुहानूं उहदे चेहन तो पता लगदा भी हस पई। देवी हस पई ते उस शुभ वचन कीते, हे पुत्र पंथ रचन दा वर मैं दिता। यह जिहड़ा खालसा पंथ है, यह देवी दे वर नाल इसकी रचना हुई। इस विच इन्ना भेद रह गया है। गल की हुई? गुरु गोबिंद सिंह ने अखां बंद कर लईआं दर्शन करके। जे तू अखां बंद ना करदा तेरा राज हुणे हो जाना सी, पर हुण तू अखां बंद कर लईआं। तुसीं मेरे दर्शन करदे समय नैण बंद कर लए हाँ सन, इस करके तुहाडा शरीर छड्डण पिछों जद 40 वर्ष बीत जाणगे तां तुहाडा पंथ जग विच विशाल वधेगा। क्योंकि ये ग्रंथ लिखिਆ 1843 विच, उदों दा महाराजा रणजीत सिंह दा राज हो चुका सी। ये कवि मतलब इतना चीज़ां दा लाभ उठाउंदे ना भी जिहड़ा अज बंदा पढ़ू, देखो जी गल सच्ची होई। देवी ने कहा सी ऐन उवें होया, भी इदां उदों बाद च मिसलां होईआं, भी सिख राज होया। भाई यह जदों ग्रंथ लिखा गया ना, उदों सब कुछ हो चुका सी। सारा 1839 विच महाराजा रणजीत सिंह की राज करके मौत भी हो गई सी। उहदे पुत्रां दा राज चल रहा सी 1849 तक। तो आज जो कुछ लिखा जा रहा कवि संतोख सिंह द्वारा, ये सारा कुछ वापर चुका सी। और सारा कुछ वापरिया भी कवि संतोख सिंह दियां अखां दे सामने सी, क्योंकि उहदा जन्म होया सन 1788 विच। ये ग्रंथ लिख रहा 1843 विच। उदों सिख मिसलां सिख राज हो गया सी और चल रहा सी। इस इन्ना अच्छा तू अखां बंद तां तुहाडा पंथ जग विच विशाल वधेगा। तुरक दा तेज फिर विकराल रूप विच खत्म हो जाएगा। तुहाडी फिर अभिलाखा पूरी होवेगी। जिवें मैं उचारण कीता सब सच होवेगा। ये देवी ने गुरु गोबिंद सिंह नूं कहा। देवी ने अपने हत्थां नाल छुरी सतगुर नूं दित्ती। निज करते सतगुर को दई, जां ते करद नाम विद तई। वो जिहड़ी कर मतलब हत्थ दे नाल दित्ती सी शस्त्र, इसे करके उसनूं करद कहा जाता है। कर द्वारा दित्ती गई। ये ले कर जल जुत मिष्टान। ये कह रहे ने भी ए लैके पानी विच मिठा पा के फेर न करो अपने पान। इस करके ये नाम करद प्रगट होया। ये लैके जल सहित मिठा लवो ते इसनूं पानी विच फेरो। हुण यह कवि संतोख सिंह लिख रहा, और दूजे पासे यही कवि संतोख सिंह लिख रहा कि जदों
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ